Hi everyone, welcome to Precise Academy. So in this lecture, we are going to cover the Convention on Biological Diversity under the initiative of Environmental Convention and Protocols. So under this initiative of Environment and Ecology, we are going to cover some of the environmental convention and protocol which are important for the UPSC and state PCS examination. So it is very important for prelims as well as mains. So that is why we are going to cover this environmental convention and protocols. So earlier we have covered the Earth Summit, also called Rio Earth Summit, and we have also covered the Stockholm Convention. So in this video, we are going to cover the Convention on Biological Diversity, and in the upcoming lectures, we are going to cover some of the other important conventions and protocols. So which is important for UPSC and state PCS examinations. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Precise Academy to make a preparation for UPSC and state PCS examination. So let us start this lecture. So in this lecture, we are going to cover this Convention on Biological Diversity. So what is all about this Convention on Biological Diversity? So Convention on Biological Diversity is informally known as Biodiversity Convention, and it is basically a multilateral treaty है जिसका थ्री गोल्स है, ठीक है. फर्स्ट गोल्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सेकंड गोल है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, एंड द थर्ड goal of fair and equitable sharing of benefit arising from the genetic resources. So these are the three goals. So कंजर्वेशन क्या क्या करना है, हम लोग कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है. फिर उसको सस्टेन करना, जो उसका जो यूज होना चाहिए, जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस है उसका जो यूज होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए. हम लोग को उसका जो यूज करना है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. वी हैव टू यूज इन दैट मैनर कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो भी उसका यूज कर सके. दैट इज वाई दी जो यूज होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है. फिर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज. सो जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी होते हैं उनसे जो भी बेनिफिट्स होगा ह्यूमन काइंड को, उसका जो भी इस कन्वेंशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है. So this convention recognized for the first time in the international law that the conservation of biodiversity is a common concern of the humankind, and it is the integral part of development process. So if you look this, then you will find that before the Cold War, or during the Cold War, or before the Soviet Union disintegration, जो इंटरनेशनल कंसेंसस था वो जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेके वो कंसेंसस अमंग दी कंट्रीज नहीं बन पाते थे. लेकिन ये जो कन्वेंशन हुआ उसके बाद में सभी कंट्रीज ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और हम लोग को जो डेवलपमेंट करना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जरूरी है, ठीक है. सो दिस बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है. वी नीड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. So now we will see the what are the objective of this convention. So develop a national strategy for the conservation and sustainable use of biological diversity, and it is often seen as a document regarding sustainable development. So इसका जो convention on biological diversity है, one of its objective है कि develop a national strategy. मतलब है कि हर नेशन एक अपना नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप करे फॉर द सस्टेनेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज. बिकॉज अगर तुम देखोगे जो जो इन्वायरमेंट है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है. और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है वो डिपेंड करती है तुम्हारा जोग्राफिकल रीजन है. मान लो कोई ट्रॉपिक रीजन में है तो वहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी वो टेम्परेट रीजन है उससे डिफर होगी, वो आर्कटिक रीजन से डिफर होगी. तो जो भी जोग्राफिकल एरियाज है वहाँ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, तो वहाँ जो जो स्टेट्स है जो कि इस कन्वेंशन को जिन्होंने साइन करा वो अपना एक अलग ही नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप करे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और जो उसका जो बायोडाइवर्सिटी का जो यूज होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए. जैसे हम लोग ने SDG गोल 2030 ये UN में आया है, ठीक है, SDG गोल. फिर इट लिंक्स ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट टू इकोनॉमिक गोल ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. सो इट बेसिकली ट्राई टू लिंक द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट, जो भी ट्रेडिशन हम लोग जो कंजर्वेशन एफर्ट था, टू इकोनॉमिक गोल. सो हम लोग को जो कंजर्व करना उसको ऐसा मैनर में करना है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक गोल भी पूरा हो जाए और जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो यूज हो रहा है वो भी सस्टेनेबल हो, ठीक है. फिर कंजर्वेशन वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर एट द अर्थ समिट of in Rio de Janeiro 5 जून 1992. सो 5 जून 1992 को जो अर्थ समिट हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ब्राजील में. तो ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो ये प्लेस है ब्राजील में, वहाँ ये कन्वेंशन ओपन हुआ था फॉर द सिग्नेचर
और ये कम इनटू फोर्स कब आया था, 29 दिसंबर 1983 को, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो ये कन्वेंशन के दो सप्लीमेंट्री कन्वेंशन भी बोल सकते हो और एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल है एंड नगोया प्रोटोकॉल। सो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आल्सो हैव टू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कॉल्ड कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। So ये है तुम्हारा Cartesian protocol on biosafety. So in the upcoming lecture we are going to cover this Cartesian protocol and Nagoya protocol in a very detailed manner. लेकिन इस लेसन में हम लोग I try to restrict myself to convention on biological diversity, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा तो we are not able to कि convention on biological diversity बहुत ही differ हो जाएगा, ठीक है। So I try to restrict myself to convention on biological diversity, and in the upcoming lecture we are going to cover this Cartesian protocol and Nagoya protocol separately in a very detailed manner, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी इंपॉर्टेंट है। सो शॉर्ट मैनर में हम लोग देखेंगे कार्टेजियन प्रोटोकॉल क्या है। सो कार्टेजियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि गवर्न करती है मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या होते हैं, एलोमस एलोमस एंड रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और यू कैन कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो इट वाज ओपनड for the agreement in 2000 and it was come into force in 2003, ठीक है। So Cartesian protocol basically एक protocol है, it try to uh, control the movement or control or govern the movement of living modified organism from one state to another state, ठीक है। So living modified organism वो होते हैं मान लो genetically you can call this genetically modified organism. So by you can genetic engineering, or you can call in a present day biotechnology, by using this genetic engineering we try to convert the DNA of a organism to get the desired result. So जो भी result हम लोग desired result एक biodiversity एक organism में हम लोग चाहते हैं, we can get by modifying their genes और DNA, ठीक है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और मान लो आप यू कैन हियर अबाउट द जेनेटिक क्रॉप्स। सो जेनेटिक क्रॉप्स और नथिंग बट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है, और जैसे बीटी बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, बीटी कॉटन्स हो गया। सो इसका जो एम होता है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का जो एम होता है वो बेसिकली होता है कि अगर मान लो हम लोग जीएम क्रॉप्स को डेवलप करते हैं तो ये क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो भी पेस्ट इस पे अटैक करते हैं वो उस पर अटैक नहीं करने पाते हैं। फिर तुम्हारा हो गया कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ही हार्श क्लाइमेट को डील कर सकते हैं, ठीक है। सलाइन वाटर में तो ये डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड है हम लोग का वो बढ़ जाता है। फिर क्रॉप यील्ड होने से क्या होता है, जो हम लोग का जो इकोनॉमिक स्टेटस वो भी इंक्रीज होता है। अगर कोई क्रॉप यील्ड अगर बढ़ रहा है तो हम लोग को उससे अर्निंग अधिक होगा, तो हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है। लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस है। सो मान लो जैसे अगर कोई पेस्ट है, अगर हम लोग कोई जीएम क्रॉप्स बनाते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो जो पेस्ट इस पर जो अटैक करता था, और जो फूड वेब में जो जो लोग इस पेस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, इससे क्या होता है, अगर मान लो ये पेस्ट अगर इस पे अटैक नहीं करने पाएगा तो उसको अगर फूड नहीं मिल रहा है, तो फूड नहीं मिल रहा है तो ये तो एक्सटेंड कर जाएगा ये इंसेक्ट जो इस पे अटैक करता था। अब क्या होगा कि ये अगर जो इंसेक्ट है वो अगर एक्सटेंड हो गया तो उसमें जो भी फूड वेव हो गया, जो फूड चेन जो उससे रिलेटेड हो गया जितने भी, वो सभी एंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को एंडेंजर्ड करता है। फिर ये इथिकल भी नहीं है कि हम लोग जो नेचुरल वे है, जो जो नेचर हमारा जो जो हर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है, उसको इकोलॉजिकल नीच बोलते हैं, ठीक है। तो अपना एक अलग फंक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर डिजायर्ड वे में अगर अगर कोई क्रॉप्स हो गए या ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने लगे तो इट इज अगेंस्ट द नेचर और इट इज अगेंस्ट द इथिकल नॉर्म्स आल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेजियन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर नगोया प्रोटोकॉल देखते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है। सो नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। सो नगोया प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है तुम्हारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इट बेसिकली सेज अबाउट दैट द एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज शुड बी एंड देयर इज अ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। सो जो भी जेनेटिक है, जो रिसोर्सेज है उसका जो यूज होगा, उसका जो उससे जो भी बेनिफिट होगा उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ लीगल ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीडी। सो हम लोग ने जो, अगर तुम ये देखोगे इसमें एक वन ऑफ द थ्री मेन गोल्स में क्या है तुम्हारा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द
जेनेटिक रिसोर्सेज। सो वन ऑफ दी जो ऑब्जेक्टिव और सीबीडी का वो तुम्हारा नगोया प्रोटोकॉल करती है, ठीक है। और तुम अगर तुम देखोगे तो नगोया प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2010। ये कहाँ हुआ था? नगोया, जो ये प्लेस है जापान में, एंड इट कम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 2014। सो 2014 में अगर तुम देखोगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज डिक्लेयर, ठीक है, यूएन ने डिक्लेयर करा था। फिर फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिग्नेटरीज एट नगोया, यूएन डिक्लेयर 2011 to 2020 एज अ यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और इस कन्वेंशन में ये भी बात की थी स्ट्रेटेजिक प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011 to 2020। सो हम लोग देखेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, ठीक है। सो अभी तक देखो, अगर जो मीटिंग्स देखोगे तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जो भी इनका मीटिंग होता है, तो जो भी मीटिंग इनकी पार्टीज को होती है उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहला हुई थी तुम्हारा बहामस में 1994 में, और इससे पहले जो हुआ है लास्ट में वो इजिप्ट में हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14। और जो तुम्हारा, सो ठीक है, ये नगोया प्रोटोकॉल है। सो अगर तुम पार्टीज को देखोगे कि कौन कौन से पार्टीज इसके मेंबर्स हैं, सो एज ऑफ 2016 द कन्वेंशन हैव 196 मेंबर्स, ठीक है, पार्टीज हैं, and which include 195 states and यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और ऑल यूरोपियन यूनियन जो ऑल यूनियन मेंबर्स, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट द यूएस इज द मेंबर ऑफ दिस, ठीक है, सीबीडी। सो अगर तुम अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है, फॉर दिस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। सो इंडिया हैज रेटिफाइड इन 1994 दिस सीबीडी एग्रीमेंट, ठीक है। फिर इंडिया ऑल्सो इनेक्टेड दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 फॉर द गिविंग इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन। सो जैसे मैंने बोला था कि सीबीडी में एक क्या था कि नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप करना है। तो नेशनल स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया 2002। फिर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इन 2003, ठीक है। सो अगर तुम स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी को देखोगे, जो 2011 से 2022 है 20 है, तो इसमें बेसिकली 5 टाइप के स्ट्रेटजिक गोल को बात किया है। इससे स्ट्रेटजिक गोल A, B, C, D, and E। सो कौन कौन से, जैसे तुम एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। फिर तुम्हारा रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। Third, to improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem, species, and genetic diversity. And fourth is enhance the benefit of all form of biodiversity and ecosystem services. Last is enhance implementation through participatory planning, knowledge management, and capacity building. So ये सभी 5 goals हैं, ठीक है, under the strategic plan for biodiversity 2011 to 2020। सो अभी तक जैसे मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 तक हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 15 जो होनी है वो तुम्हारा चाइना में होना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग अदर भी जो यूएन कन्वेंशन को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल टू मेक इट प्रिपरेशन वेरी गुड, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, सो थैंक यू।